So, dear students, good morning once again. See, here today I taught you English short stories of class 12. All sections, for all sections are called class 12. Chapter number 1, The Gold Watch. Dear students, as I taught you in my last two videos about the condition of a poor factory worker named Sanku. He had a lot of debts on his head. He could not suffer due to his family problem. He could not do anything in his life, just only just earning and spending. He had taken many borrowed, he had borrowed from several peoples. So see what I taught you last week. Now today I will continue the same chapter from the same paragraph a few moments up to walked away for all the chapter. From here a few moments up to end. A few moments passed. The engineer, a short fat Englishman with cat-like eyes who looked like a marble statue, got out of the room, closed the door and left. So, as I told you yesterday in my previous video, how Sanku was trying to take or steal the gold watch. Here, during the interval, when each and every person went out from the factory for taking lunch or rest. So, the office was completely deserted office. There was nobody inside the office. The condition, he tells us about the condition of the office. The window of the office was partially closed and partially open. And we can put the hand inside the window and take the watch, steal the watch. A few moments passed. कुछ क्षण और बीत गए. The engineer, a short, fat Englishman with cat-like eyes, वह जो इंजीनियर था, जिसकी बिल्लियों की तरह आंखें थीं, और मोटा फैट मैन अंग्रेज, who looked like a marble statue, जो बिल्कुल संगमरमर के मूर्ति की भांति दिख रहा था, got out of the room, कमरे से बाहर आया, closed the room, closed the door, दरवाजे को बंद किया, and left, और वहां से चला गया. जो अंग्रेज था, वो बॉस था ऑफिस का, वो वहां आया, वहां से ऑफिस से बाहर निकला, दरवाजे को बंद किया और चला गया. As usual, there was no watch on his wrist. So प्रतिदिन की भांति आज भी उसके कलाई पर कोई घड़ी नहीं थी. Sanku's heart felt cool with relief. संकु को शांति मिली, जैसे लगा उसे ठंडक प्राप्त हुआ हो, किसी बात को लेकर के वह बिल्कुल निश्चिंत हुआ हो. A few more moments passed. कुछ और क्षण बीत गए. संकु looked all around. संकु ने चारों तरफ देखा. There was nobody inside. तो कोई भी दिखाई नहीं दिया. He walked towards the office. वह ऑफिस की तरफ आगे बढ़ा. The glass window as usual was only partially closed. So हमेशा प्रतिदिन की भांति
ग्लास विंडो, ऑफिस का जो शीशे वाली जो खिड़की थी वह आधी बंद थी, इसका मतलब आधा हिस्सा खुला हुआ था। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी जो थी वो उसी टेबल पर रखी गई थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, कितना तेज चमक इस घड़ी में। हिज हार्ट बीट फास्टर, सनकू की हृदय की धड़कनें और तेज हो चली। द इंग्लिशमैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड ही स्टॉप ओनली बाय 4 o'clock। अंग्रेज अब लंच के बाद ही लौटेगा और उसके रेस्ट करने का जो समय है वह अब 4 बजे तक है, उसके पहले नहीं आना है। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर। देयर वॉज नोबडी अराउंड, चारों तरफ कोई था भी नहीं, कोई भी नहीं। 1 2 3 6 or 7 minutes passed। 1 2 3 4 5 6 7 मिनट निकल गए, बीत गए। सडनली सनकू थॉट, अचानक सनकू ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, माना यदि किसी ने मुझे देख लिया। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसे पिछले कुछ दिनों की बात, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, हमेशा यही भय उसे पीछे ढकेल देता था, अर्थात उस घड़ी को चुराने से उसे रोकता था। He took a few steps and looked around। उसने कुछ और कदम आगे बढ़ाए, फिर चारों तरफ देखा, बट saw no one, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया, कोई दिखाई नहीं दिया। Prompted again by urgent need, he walked toward the room। ऐसा उसने किया कि कोई अति आवश्यक कार्य से जा रहा है और उसने उस कमरे को छोड़ दिया। Once again he looked around, एक बार पुनः उसने चारों तरफ देखा। Nobody was there, कोई नहीं था। A sudden passed through his veins, उसकी धड़कनें बढ़ गई। His heart throbbed, धड़कनें और तेज हो गई। 1 second passed, 1 सेकंड बीता। He stretched out a hand and the gold watch was in it। हाथ बढ़ाता, सोने की घड़ी उसके पास था। None of his eyes made a quick circle। उसने जब हाथ बढ़ाया, घड़ी उसके हाथ में आ गई, तेजी से उसने चारों निगाह दौड़ाई। No one was there at all, कोई वहां पर नहीं था। Trembling, कांपते हाथों से ही put the watch in the pocket of his trouser। कांपते हाथों से उसने उसको अपनी जेब में रख लिया। He held his breath and walked forward in haste। तो सांस को रोकते हुए तेजी से वहां से आगे की तरफ निकल गए। After about 10 steps, लगभग 10 कदम जाने के पश्चात, he looked back, उसने पलट कर पीछे देखा। Then he saw someone walking quickly along the street corridor। फिर उसने देखा कोई पूरी छोर से द्वार से चला आ रहा। Obviously he was going to the timekeeper's house। निस्संदेह वह टाइमकीपर के ऑफिस से ही आ रहा। He must have seen everything। निश्चित रूप से उसने सब कुछ देख लिया होगा। Perhaps he was hastening to inform the watchman at the gate। शायद वह गेट पर गेटमैन को इन्फॉर्म करने जा रहा है। Oh God, had he been? हे भगवान, क्या उसने कोई गलती कर दिया? सनकू स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रिफाइड। सनकू वहां बिल्कुल खंबे की तरह जड़वत वहीं खड़ा। द गोल्ड वाज सीन टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर। जलते अंगारे की तरह वह सोने की घड़ी उसकी जेब में जल रही थी। इट्स स्पार्क्स अलोंग हिज नोज, उसकी चिंगारियां पूरे शरीर में फैल रही। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग राउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर। जलती हुई आग की तरह उसके चारों तरफ घूम रहा था। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द हर तरफ उसकी ज्वालाएं बढ़ रही थी। नो शेड ऑफ गोल्डन एनीवेयर, कहीं भी शांति नहीं। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग, ऐसा लग रहा था सब कुछ जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। But the Sanaku, while standing here like a pillar, वहाँ तभी एक आवाज आई, भाई सनकू, यहाँ खंबे की तरह क्यों खड़े हो? Sanaku turned with a start and saw Madhavan standing close by। तो जैसे सनकू पीछे पलटा, उसने सामने देखा कि माधवन वहाँ पर खड़ा है। सनकू स्टैमर्ड आउट, तो अस्मिताते हुए सनकू ने कहा, नो रीजन, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फॉर नथिंग नहीं, गो ऑन माय लायर, चल झूठे कहीं, झूठे बोल रहे हो। माधवन सेड विद लाफ एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क। ऐसा कहते हुए माधवन वहां से अपने काम पर चला गया।
He must have gone and reported theft. निश्चित रूप से वह गया होगा और चोरी की बात वहां पर रिपोर्ट करेगा। My God, हे भगवान, everyone probably knew about it. शायद सब जान गए। All the 800 odd workers at the factory would surround him noisily. फैक्ट्री के लगभग 800 लोग वर्कर उसे चारों तरफ घेर लेंगे। They would look at him in scorn. लोग उसे घृणापूर्वक देखेंगे। They would all remark with derision. सब उसे उपहास करते हुए उसका मजाक उड़ाते ठीक ठीक चोर चोर कहेंगे। Then he would be taken about before the white boss. उसके बाद फिर वह अंग्रेज के पास उसे ले जाया जाएगा and reprimanded, और वहां पर उसको फटकार पड़ेगी, फटकारा जाएगा। How sternly he would look at him. कितनी कठोरता पूर्वक वो उसकी तरफ देखेगा, ऐसा संतु ने सोचा। संतु would surely be dismissed. निश्चित रूप से संतु को डिसमिस कर दिया जाएगा। That fellow Wacky was dismissed just for taking an umbrella. अभी पिछली बार एक उसका साथी वैकी, जिसे अभी केवल अम्ब्रेला चुराने के चक्कर में उसे निष्कासित किया गया था। A cold fear entered Santu's heart with a choke with depressing thoughts. ऐसे विचित्र जो डिप्रेसिंग थॉट्स थे उसके मन में आते ही उसके अंदर भय प्रविष्ट हो गया। The guard would be waiting at the entrance of the timekeeper's office. God टाइमकीपर ऑफिस के पास वहां पर प्रवेश द्वार पर इसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। He would catch him. वो उसको पकड़ लेगा। No, that will lead danger. ये तो खतरे की तरफ जा रहा है। ये रास्ते खतरे की तरफ जाते हैं। He would put this watch back in its place. इसको उसी cinder that was burning him. अब वह इस घड़ी को वापस उसी स्थान पर रख देगा जो उसे उसकी जेब में जल रहे अंगारे के हाथ प्रतीत हो रहा था। But then, लेकिन फिर उसके मन में दूसरी विचार आई। Oh no, he said to himself on second thoughts. दूसरी बार उसने सोचा नहीं। But finally he made up his mind. लेकिन अंत में उसने अपने दिमाग में निश्चित कर लिया। He was at the office room. अब वो ऑफिस के कमरे में था। The window still remained half open. विंडो अभी भी आधी खुली हुई थी। संकु looked around. संकु ने चारों तरफ देखा। No one was there. कोई वहाँ नहीं था। No one at all. कोई भी नहीं। He took the gold watch quickly out of the pocket. तेजी से उसने उस गोल्ड वॉच को निकाला जेब से। His hand trembled like aspen leaf. उसकी aspen leaf की भांति उसके हाथ कांप रहे थे, पत्ती की भांति। He presently remembered his home and his unpaid debts. अभी भी उसे अपने चुकता किए गए कर्ज याद आए। What was to be done? क्या होगा? Sanku felt suffocated. अब उसे फिर सफोकेशन महसूस हुआ। The sound of footsteps behind him. तभी उसने अचानक पीछे आवाज सुनी, पैरों के पश्चात सुनाई दिया। Someone was returning. कोई वापस आ रहा था। He put the watch on the table and breathlessly walked away. उसने चुपचाप उस घड़ी को टेबल पर रखते हुए वहाँ से वह निकल गया। तो dear students, see, this is the end of the first chapter of third story, and I will give you the answers of this chapter, question answer, in your homework column at your home. I will give you it as a homework there on the school website. Thank you.